रोग निदान परिषद है, जिसके पैटर्न थे अखिल भारतीय रोग निदान परिषद, जिसके पैटर्न में फिर खंडल साहब है, उपाध्याय सर है और बघेल साहब थे। तो उन्होंने कुछ अपने प्रस्ताव रखे हैं, तो ये सब मिलके एक सूत्र में आ जाए, ऐसा कुछ प्रयास चल रहा है। तो मैंने उसकी मॉडरेटरशिप या सेक्रेटरीशिप गिरीश जी कर रहे हैं, गिरीश केजे, जो हासन कॉलेज में है। और अभी पितृवत पैटर्न अपने खंडल सर है, उनकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम होगा। तो सब अपना अपना जो भी योगदान हो सकता है करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बिल्कुल छोटी सी भूमिका है। गिरीश एजेंडा बता दीजिए। सभी गुरुजनों को नमस्कार। It's indeed a very painful moment for all of us who are very closely associated with Baghel sir, and no doubt I find it difficult to speak also. Basically, I can see all galaxy of great scholars here, beginning from Gurdeep Singh sir. I welcome Gurdeep Singh sir also. Pranam sir, pranam. I see Khandel sir, Dwivedi sir, all the great scholars, and I want to humbly submit that that under tutelage of Baghel sir, we try to become somebody. So under his fond memory, we want to carry forward the legacy of Professor M.S. Baghel. Even though I could not able to put the message like RIP, still difficult for us to digest. As Ravi Shankar sir was telling, it is life. He messaged me, kept on reminding that you have other responsibilities. So I propose I propose that we are especially the Shishagan of Baghel sir, we propose to start a forum in the name of legacy of Professor M.S. Baghel sir. So I want first point, I welcome all the scholars, a great galaxy of Ayurveda scholars, Gurujan, and all the followers of Baghel sir, all the associates of Baghel sir. And first of all, I would invite suggestions regarding the naming of the forum. As mentors and as well as the followers, I request you to give your comment on the first naming of the forum. I propose the legacy of Professor M.S. Baghel, and with another important point, with all your kind permission, the meeting is being recorded. I should have told it before. I request all the mentors to please give your suggestion on the naming of the forum. Naming the forum. It is already named. It is already named with the legacy of Baghel, Professor M.S. Baghel. No, it is not correct. Yes, sir. Any suggestions? Like. What do you say, Pawan? Sir, the legacy of Baghel, M.S. Baghel is good enough. Good if enough. There is some, but yes, sir. Tapan bhai, if you say so, we shall move ahead. इस एजेंडा को अप्रूव करते हैं सर। Legacy of Professor द्विवेदी सर, ठीक है गिरीश जी, दिस नाम तो हो गया, आगे चलिए ना। Thank you so much, sir. Next, I request all the the mentors and the galaxy of Ayurveda to propose the names for these names of
to guide and to carry ahead the legacy. As especially I request Pawan sir to please carry forward this the agenda of naming of the structure, how the structure should be. I propose that let Khandal Saab pick and choose his own executive committee of 5 to 7 people. Yes, sir. We in this meeting we should not discuss all this. Maybe some other meeting we will do. But Yes, in the legacy of MS Baghel, the group preferably start a Telegram group. Website is already there. Send the forms of membership to all. Then we'll see. But more important agenda are the honoring the orations. Yes, Let's focus on those things. yes. Executive committee, Khandal Saab is good enough. He can alone do that. So let him decide his thing. हम छोटे I हैं. propose that. क्योंकि इसमें भी volunteers को मांगेंगे आप. Yes, sir. Volunteers. So let Khandal Saab propose that. Many people have not also joined because there are legends like GP Upadhyay ji also present in the team. So Yes. let's wait, है ना? इस एजेंडा को डिफर करते हैं. अनूप भाई आगे. So I welcome Anup sir to the gathering. for Anup sir, namaste. So Honorable Vice Chancellor Gujarat Ayurved University is there with us. So with the इस प्लेटफॉर्म पे formidable- अनूप भाई सही है. इस प्लेटफॉर्म पे अनूप भाई सही है. ठीक है. तो नहीं हम अभी इस समय अनूप भाई ये चर्चा कर रहे थे कि बघेल साहब की जो लीगेसी ऑफ बघेल है इसके कार्यान्विति के लिए एक टीम बनाई जाए. तो मैंने ये प्रपोजल दिया है कि खांडल साहब को तय करने देते हो अपने 5 से 7 टीम मेंबर्स चुन ले. वशिष्ठ जी भी रहे उसमें, आप रहे, द्विवेदी सर है, आरबीडी है जो आरबीडी ने ज्वाइन नहीं किया है, प्रसाद सर है, तपन भाई है. ऐसे 10-12 लोग जितने भी खांडल साहब उचित समझे, फिर एक एक छोटे छोटे उसके सब ग्रुप्स कर लेंगे. उसमें अभी हम वक्त करते हुए ये जो ओरेशंस अवार्ड्स और इसकी बात थी उस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहे थे. तो जामनगर ने एक प्रपोज किया है, चरक रिसर्च सेंटर जामनगर. वो तो करने वाले हैं. हाँ तो वो लेकिन सारे तपन भाई और अन्य लोग हैं उनको पता तो चले क्या प्रपोज किया है. वो तो ये है कि 9th जो उनकी डेट है, ये पूरा साल 9th को एक लेक्चर सीरीज होगी. एवरी 9th को शुरुआत खांडल सर से होगी और फिर आगे सोचेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे करना है. पर एवरी 9th देयर विल बी अ लेक्चर, मींस एक वेबिनार होगा. और उसमें टॉपिक अभी देख रहे हैं, खांडल सर से भी योगेश की बात हुई है, मेरी बात नहीं हो पाई. और फिर जो स्कॉलरशिप अभी हम शुरू करेंगे उनके नाम पे 2 स्कॉलरशिप देंगे. डिपार्टमेंट तय करेंगे या तो इन जनरल रखेंगे कि पीएचडी स्कॉलरशिप बघेल सर के नाम पे. ये 2 चीज तो इमीडिएट करेंगे क्योंकि वो वशिष्ठ सर ने कहा है, मतलब एफएचडी की ओर से, चरक संहिता वाले की ओर से स्कॉलरशिप होगी. ठीक है. मैं ये आपसे प्रपोज करना चाहता हूँ सर, ये 1 लेक्चर ईच मंथ ये तो ठीक है, पर एक एमएस बघेल ओरेशन जामनगर यूनिवर्सिटी में आइट्रा अगर करती है ओरेशन पूरा बाकायदा एमएस बघेल ओरेशन, जैसे पीएम मेहता ओरेशन होता है. करेंगे वो भी मेरे दिमाग में है. तो वो अगर हो जाए वो तो शायद बाकी उसी दिन बात हुई थी. ओरेशन तो करेंगे ही. अभी पीएम मेहता ओरेशन चलता है. एमएस बघेल ओरेशन किस ओकेजन पे सेट करना वो देखना है, पर वो करेंगे. ठीक है. और रोग निदान परिषद एक अखिल भारतीय संस्था है रोग निदान रोग विज्ञान वालों की. तो उसमें एक प्रपोजल पारित हुआ है कि एमएस बघेल साहब के नाम पे बेस्ट थीसिस इन रोग निदान अवार्ड दिया जाए. तो बेस्ट थीसिस अवार्ड का उसका भी गठन करेंगे. उसके भी पैटर्न खांडल सर ही है, लेकिन ये मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था. ये भी एक एजेंडा पॉइंट कि बेस्ट थीसिस इन रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, इसका फॉर्मेट, इसके फेलोशिप्स, इसका अवार्ड, इसका स्ट्रक्चर सब तय हो जाएगा. पर
अभी सिर्फ प्रपोजल है और अप्रूव भी हो गया है उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। उसके जी, डिटेल्स मेरे कुछ देखिए, ये बहुत सही है, लेकिन आई थिंक बघेल इज नॉट लिमिटेड टू द रोग निदान और काय चिकित्सा और जामनगर और एनी अदर थिंग। बघेल जो है वो इतनी व्यापक सत्ता में था कि उसने बहुत सारे जो आयुर्वेद का इस सदी का जो डेवलपमेंट है, चाहे वो फॉरेनर्स की ट्रेनिंग मॉड्यूल हो, चाहे वो सीसीआईएम का मॉड्यूल हो, चाहे वो इस तरह से आईपीजीटी को उन्होंने WHO कोलैबोरेशन सेंटर बनाया, चाहे वो रिसर्चेज का एक मॉड्यूल हो, चाहे वो रिसर्च प्रोटोकॉल्स बनाना, डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स बनाना, किस तरह से ग्लोसरी ऑफ जो आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी बनाना, लाइफस्टाइल की गाइडलाइंस के लिए WHO का एक प्रोजेक्ट पूरा करना, और फिर आईसीडी तक, जो आयुर्वेद का आईसीडी तक। तो बघेल साहब जो है वो किसी सब्जेक्ट में या किसी प्लेस में लिमिटेड आदमी नहीं है, पहली बात तो। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि सब लोग जो उनके कंट्रीब्यूशन से लाभान्वित हुए हैं, वो अगर कुछ ना कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं तो बेटर ये है कि उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। और आप जो कह रहे हैं कि खान साहब करेंगे, वो ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग दूंगा, लेकिन उसकी सैंक्टिटी तब है कि जब कोई इंस्टीट्यूशन उसको ऑर्गेनाइज करे और इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, वैयक्तिक नहीं है ये काम, पर्सनल लेवल पर नहीं होना चाहिए और 5-7 आदमियों की कमेटी को नहीं करना चाहिए। बघेल साहब मेरे ख्याल में अभी पूरे सारे जितने इंडिया के एपेक्स इंस्टीट्यूट्स हैं, छोटे बड़े सब लेकर के, उसमें सबसे सर्वस्वीकृत यूनिफॉर्मली कंसेंट अगर किसी की चीज व्यक्ति की थी तो वो बघेल साहब की थी। तो इसलिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को, और खासतौर से जामनगर को, क्योंकि जामनगर में अनूप भाई हैं अभी और बहुत वर्षों तक हम अनूप भाई को देखना चाहते हैं, तो जामनगर जैसे इंस्टीट्यूट में एक पूरा का पूरा लीगेसी का एक सैंक्टिटी बने, एक चेयर बने, और उस चेयर के साथ में ही ये सब काम हो, वो जिसको चाहें तो उसमें इन्वॉल्व कर लें। अभी एक ऑनलाइन चरक का एक चेयर है, वही इस लेगेसी का काम करे। अब गिरीश है, गिरीश के पास में अगर ये सब साधन है और उसके पास टाइम है तो गिरीश करे, या फिर एनआईए भी करे। तो एनआईए करे तो पवन करे, गिरीश करता है तो आसन करे, और अभी बीएस प्रसाद भी हैं, वो भी बहुत क्षमतावान व्यक्तित्व है, अगर वो करना चाहें तो वो भी करें। अनूप भाई उन सब पे सुपीरियर अभी पोजीशन में अनूप भाई हैं, तो अनूप भाई करें, और योगेश जो है उनके साथ में है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये काम होना चाहिए, बजाय कि व्यक्ति के। ठीक है, हम हर तरह से हम उसमें सब साथ में हैं, और बहुत सारे लोग साथ में हैं, मैं ही क्या, मेरे साथ जितना बघेल का संपर्क रहा है उससे कहीं ज्यादा जामनगर के साथ में और आप सब लोगों के साथ में भी रहा है। इसलिए एवरीवन इज इंडेप्टेड विद द बघेल, और सबको अपना अपना कृतित्व जो है वो देना चाहिए। और चाहे जो भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो किसी भी जगह का एक इंस्टीट्यूट में उसको मेरे ख्याल में एस्टेब्लिश करना चाहिए, बजाय कि किसी व्यक्ति को देने की। मेरे ख्याल में ये होगा। गुरदीप सिंह सर वहाँ जामनगर में हैं, तो ये और बड़ी बात है कि गुरदीप सिंह सर के सानिध्य में हो जाए। तो ये सब काम मेरी दृष्टि से ऐसा होना चाहिए। और उसमें जैसा कि अभी आपने बताया कि एक चेयर बघेल सर के नाम से है, कुछ मंथली लेक्चर्स जो है वो हम इस साल करने जा रहे हैं। इसी तरह से बघेल का ओरेशन लेक्चर होगा, या कोई रिसर्च पेपर, या बेस्ट थीसिस, या बेस्ट टीचर अवार्ड जो है, उसमें अगर किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो आई विल बी द फर्स्ट मैन टू स्पॉन्सर दैट स्कॉलरशिप
अगर मुझे आप इसका मौका देंगे तो मैं अपने आप को बड़ा कृतज्ञ समझूंगा, धन्य समझूंगा। क्यों कि मेरे पास तो जो कुछ भी दिया लिया है वो सब बघेल का है। इसलिए क्या है कि मैं इसमें अपना जो भी योगदान है वो करना चाहूंगा। धन्यवाद। गिरीश। हाँ पवन, सर, क्या कहते हैं? खंडिल सर, हाँ सर। अच्छा, you have done very nicely. You have told. What I am telling is, one Jamnagar can be made a nodal center, and then different institutions can be taken multiple activities. Okay. So I will also take one responsibility. Some activity will be done by us. Then Girish also will do some activity. Likewise, those are all institutions will take up a few activities. But the nodal center will be Jamnagar, where totally it will be planned, and then we'll all join with that one and take some part of the activities and execute it. Definitely. That's why. That's मैं my भी point. मैं भी यही कहना चाहता था सर कि वो कमिटी का प्रपोजल है ना, प्रस्ताव है, वो सही है। कमिटी बने और एक ही जगह एक्टिविटी क्या होनी है वो पहले तय हो। जामनगर विल बी द नोडल एजेंसी, वो हम करेंगे सब, उसको कहाँ से क्या ऑर्गेनाइज हो सकता है और वो कमिटी तय करेगी कहाँ क्या करना उचित रहेगा, और हम लोग उसको पूरा फैसिलिटेट करेंगे, पूरा जो भी करना है। पर आई थिंक सब मिलके ये तय कर सकते हैं एक टीम बना के कि क्या क्या एक्टिविटीज करनी है और क्या क्या करना है, तो उसके लिए एक कमिटी बने तो ज्यादा सही रहेगा सर। ठीक है, बात सही है। जामनगर नोडल एजेंसी बने और एक कमेटी जो है वो इनिशियली बना ली जाए और उसके बाद में सबको जोड़ दिया जाए। तो कमेटी वाइस चांसलर अगर नॉमिनेट करता है तो वो ज्यादा सैंक्टिटी है उसकी। ठीक है सर, वो अभी तो सब मिले हुए हैं। आप रहें, प्रसाद सर रहें, पवन है, तपन जी को भी ले लेते हैं, गालिब रहे, एक गिरीश को गुरदीप सिंह बना सर देते हैं सेक्रेटरी। हाँ सर, गुरदीप सिंह सर। हाँ, सिंह सर भी है, मतलब वो सब रहें और कमेटी बन जाए ऐसे। आप एक काम करो गिरीश जी, पवन शर्मा जी रहेंगे संपर्क में। पवन शर्मा जी ईमानी से। हाँ बोलो। पवन शर्मा जी है। अच्छा, पवन शर्मा जी भी हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक कमिटी पर ऐसा है कि आप सब कुछ एक साथ डालेंगे तो बात कहाँ न बनेगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेशंस हो जाए। वही कह रहा हूँ कि एक अलग अलग एस्पेक्ट्स के एक फॉर्मेट सोच के एक कमिटी बने और फिर वो सजेशंस दे, और बाकी सब जो ये है, बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत कुछ अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनका होल्ड है, विद्वान भी है और अपनी एक पैठ है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सोच सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट पर्सन हु कैन इम्प्लीमेंट दिस थिंग। वो भी कमिटी सोच करके तो ऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्टिव काम होगा ऑन हिज नेम, आई थिंक। अनूप, हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, अभी जो सिंह सर है, अनिल सर है, इन लोगों को वी कैन कीप एडवाइजरी लेवल में रखेंगे। हाँ, एक वर्किंग ग्रुप अलग रहेगा, तो दिस पीपल विल बी बार मीट करके वर्किंग ग्रुप अलग करेंगे, इनके एक एडवाइजरी कमेटी एडवाइजरी ग्रुप एक रखेंगे जो सीनियर मोस्ट लोग है, क्योंकि बिल्कुल सही। हाँ वही मैं ये चाहता हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर क्या होता है, जो मैंने देखा है, आप सब लोगों ने भी देखा है कि फॉर द नेम से एक्टिविटीज होती है कि ये हो गया, वो हो गया। मैं ये नहीं चाहता उनके नाम पे। मैं ये चाहता हूं कि उससे कुछ इम्पैक्ट आए फील्ड में, जो कि वो खुद ऐसे व्यक्ति थे कि जो करते थे उसका इम्पैक्ट आता था। तो मैं ऐसी एक्टिविटीज चाहता हूं ऑन हिज नेम कि उसका इम्पैक्ट आए, आयुर्वेद क्षेत्र में उसका असर आए, असर दिखे। भले हम 2 एक्टिविटी करें पर वो एक्टिविटी ऐसी हो कि उसका इम्पैक्ट आए ऑन हिज नेम। दैट्स व्हाट आई सजेस्ट। उनके लिए वो कमिटी में डिस्कस करेंगे ना, लेट एवरीबॉडी गेट सम आइडियाज, देन वी कैन बैठ के वो सपोर्ट करेंगे।
then you have to work out ways and means also. इसको execute कैसे करना है वो भी सोचना पड़ेगा ना. बिल्कुल. खांडल साहब ने सजेस्ट किया था कि जो संस्था प्रमुख है वो जरूर जुड़े और कोई बड़ा दायित्व निभाए. They should take their responsibility to the next level. So there are certain people. I at least recognize Sanjay Kadlimati. He is the principal from BLD. I think हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, let them volunteer. पवन जी, हमारे साथ इस ग्रुप में अभी जो भी जुड़े हुए मुझे जो दिख रहे हैं, हर व्यक्ति एक इम्पैक्ट रखता है, हर व्यक्ति अपना स्थान रखता है. और बात यह है कि 15 अलग अलग एक्टिविटी करने के बजाय 2-3 ऐसी एक्टिविटी हो. सर, पवन सर, अनूप सर. नमस्ते कलिमती जी. सो ऐसी एक्टिविटी वर्कआउट हो कि सब मिलके, इतनी सारी एनर्जी हमारे साथ है तो उसका एक प्रॉपर चैनलाइजेशन हो और एक सही मूवमेंट बने, बड़ी. ठीक है सर. उस दिशा में सोचना चाहिए, क्योंकि चलो वो फेलोशिप तो हो ही गई, वो हम डे भी कर देंगे, बट वो तो एक ठीक है, वो रूटीन है, वो बहुत सारा होता है. पर मैं ये चाहता हूं कि सही में ऐसी प्रवृत्ति हम करें कि जिससे इम्पैक्ट आए उनके नाम से. उदाहरण स्वरूप कुछ है आपके ध्यान में? सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी चाहते हैं अनूप सर? पवन सर बोलिए. आप कौन सी एक्टिविटी? अनूप ने बोला तो ठीक है, सही है. अभी तो ऑलरेडी खन्ना सर भी बोला है, बेस्ट थिंग्स अवार्ड भी है, कुछ फेलोशिप्स है. व्हाट आई एम टेलिंग, वी कैन हैव a research fund actually. So research fund, because he is very much interested in research also. So we can create some research fund where we have the innovative ideas. For them we can fund it. That can be given a high impact also. It can be the research fund. That can be it is not there in Ayurveda now. We can have the small research funds where we have good ideas. Maybe it may thesis, PhD or MD or faculty research activities also. We can have a small fund. Through that we can have innovations. That also can be thought of. That's right. That's good idea. That's good idea. बस ऐसी ही चीजें मैं सोच रहा हूँ कि जिसका इम्पैक्ट आ सकता है. मतलब दूसरे भी आइडिया हो सकते हैं ऐसे. We all ideas collect करेंगे, then we can make a program chart out करेंगे where we want money, where we don't require money. Preparing a material means good teaching material. उसके लिए कुछ हम निकालें कि भाई ये कंपटीशन हो, या उसके लिए अवार्ड निकालेंगे कि बेस्ट टीचिंग मटेरियल. तो वो ये सब ऐसी है कि जिसका इम्पैक्ट आता है फील्ड में. बघेल सर के बहुत सारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी मेरे ध्यान में हैं और वो लगभग कंप्लीट हैं. तो उन सबको कंप्लीट करने का या पब्लिश करने का यदि कोई इंस्टीट्यूशन काम में हाथ में लेता है तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा. उसमें 2-3 चीजें तो मेरे सामने अभी मेरे पास ही पड़ी हुई हैं. एक तो उनका कृमि रोग का जो आर्टिकल है वो करीब 400 पेज के आसपास मेरे पास में है. दूसरा आवरण और गतत्ववाद का जो कंसेप्ट सुबह आपने देखा होगा बसंत पाटिल ने उसको फॉरवर्ड किया था, तो वो भी हमारे पास में लिखा हुआ है. कुछ उनके लेक्चर हमारे आरोग्य लक्ष्मी में एक रेगुलर बेसिस पर कुछ लेक्चर्स होते हैं. तो वो हर वीक में 2 लेक्चर होते हैं. तो एक मेरा और एक बघेल सर का है. तो बघेल सर के करीब 100 से भी ज्यादा लेक्चर्स जो है वो वीडियो यूट्यूब पर है कुछ तो, और कुछ हमारे पास में है. तो इन सब चीजों को क्या है कि एक हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऐप भी बनाया है. तो अगर इसको कोई लीगेसी के साथ में कोई ऐप बना दिया जाए जिससे क्या है कि बघेल सर का चाहे पब्लिश नहीं हो तो उसका ऑनलाइन प्रेजेंटेशन सबको अवेलेबल हो. तो इस तरह से मैं चाहता हूं कि बघेल सर ने जो लेक्चर दिए हैं या जो कुछ लिखा है उन सबको क्या है कि सबको अवेलेबल हो जाए. जितने उनके
फ्रेंड्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या स्कॉलर्स हैं या जो चाहते हैं नेशनली इंटरनेशनली इंडिया अब्रॉड, वो सबको मिल जाए। तो उन सब के लिए मैं अनूप सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक ऐसा कोई सेल बनाएं जो इन सबको पब्लिश करे या ऑनलाइन टेलीकास्ट करे। करेंगे सर, वो तो कर लेंगे। मैं वही सोच रहा हूँ सर, मैं यही कह रहा हूँ कि आज मिलके एक कमेटी बना लें और सब जितने भी लोग हैं सब सजेशन दें, सबसे सजेशन मंगवाएं और फिर वो कमेटी में रख के उसको तय करें कि ये एक्टिविटी करनी है। देन उसको इम्प्लीमेंट करना कैसे है वो वी विल फाइंड आउट द वे। आई विल टेक द लीड, मीन्स जामनगर इंस्टीट्यूट विल टेक द लीड। और जहाँ हेल्प लगी, जैसे प्रसाद सर है या कदली मट्टी जी हैं या NIA की जरूरत हुई तो पवन जी हैं या संजीव जी हैं, किसी की भी हेल्प लेके करेंगे वो वी विल डू इट। पर एक बार वो सभी आइडियाज एक जगह आ जाए और फिर उस पर मंथन होके एक स्वरूप प्रॉपर बने कि कैसे करना है, तो वो ज्यादा सही रहेगा मुझे लगता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें से एक साथ करने जाएंगे ना, तो मैं ये नहीं चाहता कि कुछ शुरू हो और वो लॉजिकल एंड पे न जाए। चीज ऐसी ही शुरू करें जो लॉजिकल एंड तक जाए और उसका इम्पैक्ट आए। भले हम 2 चीज करें पर वो ठोस करे। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो ठीक है, कमेटी तो बना सकते हैं और कमेटी आप डिक्लेयर कर देंगे, पवन जी कर देंगे, गिरीश कर देगा, कोई भी कर देगा। कमेटी में कोई खास बात नहीं है। कर लेंगे सर, वो कर लेंगे, चर्चा करके एक बार कर लेंगे आई थिंक। हाँ। और एटलीस्ट ये हो सकता है ना कि सभी लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप में या तो आइडिया भेज सकते हैं या तो अलग से गिरीश के मेल पे भेजें कि भाई दिस शुड बी डन, एंड देन ऑन दैट वी कैन सिट एंड वी कैन थिंक कि इसमें कैसे और क्या हो सकता है। गुरदीप सिंह है यहाँ पर अभी? सिंह सर शायद दिख तो नहीं रहे, 1 मिनट राय ले लें। नहीं दिख रहे हैं सर। है गुरदीप सिंह सर है। सर से एक बार राय ले लेते हैं, उसके बाद में बनाते हैं। सर प्रणाम। बड़े भाई सिंह सर तो हैं। लक्ष्मीकांत जी भी थे यहाँ पर अभी। हाँ, वो अभी दिख रहे थे। सिंह सर हैं, सिंह सर जुड़े हुए हैं। ऑन नहीं है उनका माइक तो दे कुछ। चलिए समाप्त कीजिए इसको। और कुछ कहना चाहते हैं कोई? Sir, with your kind permission, I want to share. I have created a website. I have registered a website, and I want to. मेरा ये दिल की इच्छा है from the bottom of my heart that all the activities can be brought into the into the stream through that. I just want to share the website. This is a prototype. I hope all of you can see it. So I want a suggestion from all the mentors regarding this. So that's what I want to say. And in this regard, I have created a email ID which I have posted in the what do you call chat. Contact at legacyofprof.msbaghel.in. So that will be the email ID through which we will correspond. And one more important thing is I have got Google Enterprise Edition. So whatever the lectures to be uploaded
creation of a YouTube channel, everything is possible. No doubt, promotion through Facebook and Telegram is good, but in the long run, I believe that all the activities can be centered on this website. No doubt, I mean, it is really heartening to see that all the great people have come together. No doubt, सबके करीब थे ही बघेल से. बस इतना कहना है. ठीक है पवन जी, आप इसको समअप कर दीजिए ना. ठीक है. तो सभी बड़े लोगों को, स्पेशली गुरदीप सिंह सर को नमन करते हुए, मैं इस कार्यक्रम में जो भी इस रिकॉर्ड भी हुआ है, इसके मिनट सर्कुलेट कर देंगे गिरीश जी, और फिर हम अनूप भाई और खंडल सर के मदद से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अध्यक्षता में, वो तय करें, एक कमेटी बनेगी और फिर सारे कार्यकलाप जो आज हमने थोड़े बड़े चर्चा की है उस पे एक स्टेप और आगे जाते हैं. अगले महीने फिर से एक मीटिंग करते हैं. इन द मीनवाइल 9th को लेक्चर तो हो रहा है खंडल सर का, उसमें सब जुड़ने का प्रयास करते हैं. विथ रिक्वेस्ट टू एवरीबडी टू जॉइन द फर्स्ट ओरेशन इन द नेम ऑफ MS Baghel sir, to be delivered by Professor Khandal sir on 9th of February. I request everybody to join hands and let's keep the memories active of our all beloved Baghel sir. Namaste. सभी को नमस्कार, धन्यवाद. नमस्कार. 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 Okay, Girish. Thank you. Thank you so much, sir. We will meet again and again, sir. Thank you so much. अरे उसने बोला गाड़ी में थी, बोला क्या हुआ? नमस्कार सर. नमस्ते. नमस्ते. उमेश सर. नमस्ते. नमस्ते. कैसे हैं सर? बस मजे में चल रहा है. खंडल सर प्रणाम. हाँ नमस्ते. गुरुजी नमस्ते. नमस्ते.